Good morning students, welcome to Shiv Jyoti Educational Group Kota. This is Barkha Gaur, your biology teacher. How are you students? I hope you all are fine at your places and doing well. Today in this video we are going to start chapter 5 of biology class 12. Students, till now we have learned about human reproduction and reproduction in general in plants and animals both. Now after reproduction, now we need to know something about heredity. As you know children, या कभी आपने थोड़ा आश्चर्य भी होगा कि जब हम अपने आसपास देखते हैं जितने भी living beings हैं, they have their offsprings also, they have small babies, they look almost similar to each other, है ना? The elephant baby looks like elephant only, the mango tree, the small mango plant looks like mango tree only. So they have some common features. And you might also have observed some differences also, like your parents are little bit different from you, they are not exactly like you. तो what we observe, हम क्या देखते हैं कि कुछ similarities भी हैं, कुछ variations भी हैं, depending upon the complexity of the animal. Animal या organism की जितना complex organism होगा उसमें उतने ज़्यादा variations आते हैं. आपने ये भी पढ़ा है asexual reproduction and sexual reproduction also we have studied. हमने ये देखा कि asexual reproduction में no variations are there while sexual reproduction have variations. So this is what we are going to study. अभी तक हमने unit first पढ़ा. Now we are starting unit second about genetics. So the first chapter of this unit is principles of inheritance and variation. Children, before we start the chapter, I would like to suggest to open your NCERT books, chapter 5. Okay. Now we talk about the chapter, we talk about these topics. Now before we proceed everything in detail, I would like to tell you that what we are going to study in this video. That means this chapter will be completed in two videos, two parts. So in first part we are going to learn these things, that is Mendel's law of inheritance हम देखेंगे, inheritance of one gene and test cross, incomplete dominance, co-dominance, inheritance of two genes also. So these parts will be included in this video. Now as we will learn about this, we need to know some important terms जो हमको बिल्कुल clear होने चाहिए. Although we have learned all these things in 10th class also, लेकिन still we need to be clear with these terms. जैसे कि first term है आपका genetics. तो genetics एक बहुत ही बड़ा field है, बहुत ही बड़ा branch है science का. It deals with the study of inheritance and variation of characters from parents to offspring. Means जब parents से offspring बनते हैं तो there are many variations and some characters are inherited. Inherited का मतलब होता है जो parents से बच्चों में transfer होता है, inherit हो रहा है, मिल रहा है जो. So inheritance means the process by which characters are passed on from parent to progeny. Progeny भी offspring ही होता है. Now variation is what? Degree by which the progeny differs from its parents. जो differences हमें दिखते हैं अपने parents और हम में, या जितने भी इतने सारे हम human beings देखते हैं सब different है. They are quite different from each other. तो ये क्या है? Variation है. तो these things should be clear. Now we'll start with the Mendel's experiment. When we talk about Mendel, आपने पढ़ा है 10th में भी, Gregor Mendel, who is known as the father of genetics, he did too much work on this inheritance. उन्होंने जब वर्क किया था तब इतना ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी, माइक्रोस्कोप्स इतने नहीं थे और स्टडीज़ भी एक बहुत लिमिटेड फॉर्म में हुई थी. तो उन्होंने जो भी डिस्कवरीज की, जो भी उन्होंने बातें बताई, वो किसी ने एकदम से एक्सेप्ट नहीं की. लेकिन उन्होंने जो भी काम किए वो सारा बाद में रीडिस्कवर हुआ. हम पढ़ेंगे कि उन्होंने रीडिस्कवर किया और फिर जाके उनकी बातें सबको समझ में आई. तो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंस. मतलब जब कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं तो क्या क्या चीज़ें फॉलो होती हैं या क्या रूल्स फॉलो होते हैं. उन्होंने किस पे एक्सपेरिमेंट किया? गार्डन पी पे. Large sampling size gave credibility to his collected data. Garden pea plant possess certain completely opposite traits.
क्योंकि उन्होंने सारा वर्क किस पे किया था, गार्डन पी पे। गार्डन पी पे क्यों वर्क किया ये भी आपको बताएंगे। देन ये आपने पढ़ा भी है, गार्डन पी पे क्यों वर्क किया, क्योंकि इस तरह का प्लांट है जिसमें एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है ही सही, बहुत सारे इसमें वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स हैं, जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, जो आराम से हम जिनको पढ़ के इजीली वी कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इनहेरिटेंस। सो ही चूज्ड पी प्लांट। एग्जाम्पल, ये कैरेक्टर्स के एग्जाम्पल्स हैं, ट्रेट्स के एग्जाम्पल है टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स, मतलब दो वैरायटी के प्लांट्स मिल सकते थे उनको, टॉल भी और ड्वार्फ। ड्वार्फ मीन्स शॉर्ट हाइटेड। ही वर्कड ऑन द फॉलोइंग 7 ट्रेट्स ऑफ गार्डन पी। अब जब उन्होंने गार्डन पी को स्टडी किया तो उन्होंने देखा ये इतने सारे डिफरेंट कैरेक्टर्स ही ऑब्जर्व्ड इन अ सिंगल प्लांट, और ये कैरेक्टर्स कैसे थे, बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग, अपोजिट टू ईच अदर, जो बिल्कुल आसानी से पहचान में आ सकते थे। तो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट स्टडीड बाय मैंडल इन पी आर लाइक, ये तो बेटा कैरेक्टर्स हैं, ऑल दीज आर कैरेक्टर्स, और ये कॉन्ट्रास्टिंग, देखो क्या होता है, ये जैसा कैरेक्टर है स्टेम हाइट, स्टेम हाइट के लिए कोई एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा। अब वो जीन, जितने भी देखो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो एक जो क्रोमोसोम है वो हमें फादर से मिला होगा और दूसरा जो पेयर है वो मदर से मिला होगा। तो ऑलवेज द कैरेक्टरिस्टिक्स और द जीन्स और द क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर। तो वन ऑफ द पेयर ऑफ दैट विल बी डोमिनेंट और दूसरा होगा रेसेसिव। तो कैरेक्टर्स दोनों, मतलब इनको हम एलील्स कहते हैं, जीन के दो फॉर्म्स, ये भी आएगा आपको आगे, जीन के दो फॉर्म्स जो हमारे बॉडी में, हमारे क्रोमोसोम्स में पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, दे आर कॉल्ड एलील। तो जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट, लेकिन जो एलील्स होते हैं वो एक एलील टॉलनेस को रिप्रेजेंट करेगा और एक एलील ड्वार्फनेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब टॉलनेस और ड्वार्फनेस में से टॉल इज डोमिनेंट, तो जो प्लांट जो दिखेगा वो हमें कैसा दिखेगा, टॉल दिखेगा। ये जो रेसेसिव कैरेक्टर्स होते हैं ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अब ये कब कर पाएंगे ये भी आपको बताएंगे। सपोज फ्लावर कलर की बात करें तो 2 टाइप्स ऑफ एलील्स आर देयर, वायलेट एंड वाइट। फ्लावर पोजीशन में 2 तरह के फ्लावर्स मिले उनको पी प्लांट में, एक एक्सियल एंड वन इज टर्मिनल। पॉड शेप, जो फली होती है मटर की, उसका शेप इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। बेटा टू सी द पिक्चर ऑफ दिस यू कैन रेफर ऑन पेज नंबर 70 फिगर 5.1। इसमें सब कैरेक्टर्स के पिक्चर्स भी दिए हुए, फिगर दिया हुआ है, तो आप समझ सकते हैं फिगर को देखकर कि व्हाट इज इन्फ्लेटेड, व्हाट इज कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर, इट इज ग्रीन एंड येलो, मीन्स some pod color were green, some pod color were yellow. Seed shape, round and wrinkled, some seed were round, some were wrinkled. Seed color, some were yellow, some were green. So these are the 7 contrasting characters. Now the true breeding pea lines were obtained by continuous self pollination for several generation. क्या होता है, अगर हमें एक ही कैरेक्टर हमें हर बार चाहिए, ट्रू कैरेक्टर्स चाहिए, तो उसके लिए हम बार बार सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं ताकि वो उसमें प्योरिटी आ जाए, उसी कैरेक्टर की प्योरिटी आ जाए, कोई दूसरा कैरेक्टर उसमें ना हो। दैट इज कॉल्ड ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स। हाउ कैन वी ऑब्टेन ट्रू ब्रीडिंग पी लाइन्स? बाय सेल्फ पॉलिनेशन, कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे। क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होता है, वेरिएशंस आते हैं, कैरेक्टर्स मिक्स हो जाते हैं या दूसरे कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन इज डन फॉर कंटिन्यूस। Now 14 true breeding pea lines were selected, 7 contrasting characters से, तो कितना हो गया, 14 true breeding pea lines were selected as pairs which were similar except for one character with contrasting trait. तो contrasting traits तो थे ही सही। Then एक तो self pollination भी करवाया, फिर artificial cross pollination by hybridization was performed on such varieties to obtain first hybrid generation known as the first filial progeny or F1. बेटा ये सारी टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए। आप ये देखो, फर्स्ट फिलियल जनरेशन मीन्स द जनरेशन विच वी गेट वंस, फर्स्ट टाइम में जो जनरेशन आएगी वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन कहलाएगी। और समझाते हैं आपको, आप पेज नंबर 71 पे अपने बुक में रेफर करना, वहाँ पे क्रॉस पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक का एक पिक्चर दिया हुआ है, डायग्राम दिया हुआ है, मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। हाइब्रिडाइजेशन करने के लिए 2 चीज़ें करते हैं, इमैस्कुलेशन एंड which is called controlled pollination. क्या होता है, when the flowers are open in the garden, लगे हुए हैं, plants लगे हुए हैं,
तो किसी भी प्लांट का पॉलन आकर किसी भी स्टिग्मा पे लैंड हो सकता है, लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम अपने चॉइस का ही पॉलिनेशन करवाना चाहते हैं। तो या हम चाहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, तो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और प्लांट कैसा है, बायसेक्सुअल है, तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन ना हो तो वी विल कट इट्स एंथर्स बिफोर इट गेट्स मैच्योर, एंथर को कट कर देंगे, तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो कटिंग ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन। तो इमैस्कुलेशन करके फिर उसको अपनी चॉइस का पॉलन उसके ऊपर लैंड करवा देते हैं, देन ताकि जो भी हमें कैरेक्टर चाहिए था वो वाला पॉलन लाके उसमें फिर कंटिन्यूस प्रोसेस को करवाएंगे। तो दिस इज द वे हाउ वी कैन गेट द हाइब्रिड या कह सकते हैं हाइब्रिड वेराइटी, and the progeny we get in the first generation is called first filial progeny. Let us proceed. Inheritance of one gene समझेंगे अब हम। 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस और ओके हाँ मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था। नाउ लेट अस रिवाइज इट। आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन करवा ली इमैस्कुलेशन मेथड से, then F1 generation so obtained resembled only one of its parents, say all tall and no dwarf। कहने का ये मतलब है कि सपोज हमने एक टॉल प्लांट लिया और एक ड्वार्फ प्लांट लिया और उनको वो करवाया, पॉलिनेशन करवाया उनमें, तो क्या हुआ, हमें जो फर्स्ट जनरेशन में प्लांट्स मिलेंगे वो कैसे मिले, सिर्फ टॉल। ऑल द पेरेंट्स वर कैसे थे, टॉल भी था एक पेरेंट और एक पेरेंट ड्वार्फ था, बट फर्स्ट जनरेशन में वी सॉ दैट ओनली टॉल प्लांट्स वर ऑब्टेन्ड व्हेन टू प्लांट्स फ्रॉम F1 जनरेशन। अब F1 जनरेशन में जो प्लांट्स मिले उनको हमने सेल्फ पॉलिनेट कराया और सेकेंड जनरेशन में क्या देखा कि हमें वी गॉट द प्रोजेनी इन द सेकेंड जनरेशन, उनको कहते हैं हम सेकेंड फीलियल जनरेशन या F2 जनरेशन। रिवाइवल ऑफ अनएक्सप्रेस्ड ट्रेट, मतलब जो कैरेक्टर फर्स्ट जनरेशन में नहीं मिला हमें या गायब हो गया था या छुप गया था वो कैरेक्टर वापस आया। तो रिवाइवल ऑफ अनएक्सप्रेस्ड ट्रेट was observed in some F2 progeny। तो कुछ प्रोजेनी ऐसी थी जिसमें वो रेसेसिव कैरेक्टर भी प्रेजेंट हुआ। बोथ ट्रेट्स यानी टॉल एंड ड्वार्फ वर एक्सप्रेस्ड इन रेशियो 3:1। अभी मैं क्रॉस के हेल्प से भी समझाऊंगी आपको। सो व्हाट मेंडल प्रपोज दैट समथिंग इज बीइंग पास्ड अनचेंज्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। कोई चीज ऐसी थी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होती जा रही है, एंड ही कॉल्ड दीज थिंग्स एज फैक्टर्स। उन्होंने, उसको पता नहीं था कि क्या चीज़ है जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन उन्होंने उसको नाम दिया फैक्टर्स, जिसको अब अभी हम जीन्स के नाम से जानते हैं। सो ही कॉल्ड देम फैक्टर्स। फैक्टर्स या जीन्स कह सकते हैं हम, कंटेन एंड कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। तो उन जीन्स में या उन फैक्टर्स में दे कंटेन ऑल दोज फीचर्स या कैरेक्टर्स जो हमारे अंदर आते हैं या जो प्लांट्स में हमको मिलेंगे। एलील्स, एज आई टोल्ड यू, एलील्स मीन्स एक ही जीन के दो फॉर्म्स, एक ही जीन के जीन पेयर में प्रेजेंट होगी, तो वन इज डोमिनेंट एंड वन रेसेसिव, तो वो जीन की वो जो दोनों फॉर्म्स हैं वो कहलाएंगे एलील्स। तो स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम फैक्टर या सेम जीन आर कॉल्ड एलील्स। ये वर्ड्स बार बार आएंगे तो इट शुड बी क्लियर इन योर माइंड। टू एलील्स कोड फॉर अ पेयर, दो एलील मिलकर एक जीन को रिप्रेजेंट करेंगे। अ पेयर ऑफ टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स दैट इज टॉल एंड ड्वार्फ। तो टॉल एंड ड्वार्फ मिलकर हाइट को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस। क्रॉस दैट कंसिडर ओनली अ सिंगल कैरेक्टर। देखो क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म में हजारों कैरेक्टर्स होते हैं, देयर आर टू मेनी कैरेक्टर्स, लेकिन जब मेंडल ने स्टडी किया तो सारे कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करना पॉसिबल नहीं है। तो एक कैरेक्टर, एक बार में उन्होंने पहले एक कैरेक्टर को लिया जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। ऑल्दो मेनी कैरेक्टर्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड, बट वी विल स्टडी फर्स्ट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। तो हम बात करें, सपोज वी कैन टेक एनी ऑफ द 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। हम किसी भी उनमें से एक 7 में से एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेकर स्टडी कर सकते हैं। हम मान लो लेते हैं हाइट को, ओके। तो हाइट ऑफ द प्लांट को लेकर चलें। अभी जैसे क्रॉस के बारे में देखो, दिस इज टॉल प्लांट, दिस इज ड्वार्फ प्लांट। इनको क्रॉस करवाया तो फर्स्ट जनरेशन में जो हमें मिले वो कैसे प्लांट मिले, दिखने में तो कैसे थे, टॉल। अब दो चीजें, दो वर्ड्स आपको ध्यान रखना, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। फिनोटाइप इज द फिजिकल अपीयरेंस
यानी कि बाहर से प्लांट कैसा दिख रहा है या बाहर से ऑर्गेनिज्म कैसा दिखता है, वो होता है फिनोटाइप। और उसके अंदर जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, जीन्स का किस फॉर्म में प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। तो आप यहाँ देखो, यहाँ लिखा है कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये हमें पता है कैपिटल टी रिप्रेजेंट द डोमिनेंट कैरेक्टर टॉलनेस एंड स्मॉल टी इज फॉर रेसेसिव। तो जब ये दोनों डोमिनेंट एंड रेसेसिव जब साथ में प्रेजेंट होते हैं तो सिर्फ डोमिनेंट अपने आप को एक्सप्रेस करता है। ओके, तो प्लांट कैसा दिखेगा, टॉल। तो ऑल द ऑफस्प्रिंग्स ऑब्टेन्ड इन दिस F1 जनरेशन वर टॉल। एंड अब जब इनको सेल्फ पॉलिनेट कराया, दोनों टॉल प्लांट लिए, लेकिन ये ट्रू टॉल नहीं है, ये हाइब्रिड टॉल है। इनको जब क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन में हमें ऐसा ये भी मिला, ऐसा भी मिला और ऐसा भी मिला। मीन्स प्योर टॉल भी मिला, प्योर ड्वार्फ भी मिला और हाइब्रिड टॉल भी मिला है। देखो तो द रेशो भी देखते हैं हम, 1 इज प्योर टॉल, 2 आर हाइब्रिड टॉल एंड 1 इज ड्वार्फ। तो दिस इज वॉज सरप्राइजिंग फॉर द मैंडल कि जो कैरेक्टर यहाँ गायब हो गया था वो यहाँ पे वापस आया। तो यहाँ पे जब गायब हो गया तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस। आप इस क्रॉस को ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज टॉलनेस टॉल प्लांट, दिस इज ड्वार्फ प्लांट। अगेन सेल्फ, ये गैमेट्स हैं। अच्छा, जब भी ये तो पेरेंटल जनरेशन है, गैमेट्स बनते हैं, सब सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स में गैमेट्स बनते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कैपिटल टी एक जैसा ही है, तो प्लांट के जो गैमेट्स बनेंगे वो उनके पास जो एलिल आएगा वो सिर्फ कैपिटल टी ही आएगा। ऐसे ही ड्वार्फ प्लांट के पास स्मॉल टी ही है, तो वो जो गैमेट्स बनेंगे वो सारे स्मॉल टी यानी कि ड्वार्फनेस के ही बनेंगे। नाउ इन F1 जनरेशन सेल्फिंग किया तो हम ऐसे क्रिस क्रॉस मेथड से भी कर सकते हैं, है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। अच्छा, ये वाला जो प्लांट है F1 जनरेशन के जो प्लांट हैं, इसमें 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे जीन्स के जो एलिल्स हैं वो ये हेट्रोजाइगस कंडीशन कहलाती है। दिस इज होमोजाइगस कंडीशन, दिस इज हेट्रोजाइगस, क्योंकि ये जो एलिल्स हैं ये डिफरेंट है। तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अगेन इसके भी जो गैमेट्स बनेंगे वो ऐसे ही बनेंगे। नाउ द ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन्ड इन F2 जनरेशन टॉल ड्वार्फ। दिखने में 3 टॉल है और 1 ड्वार्फ है, तो दिस विल रिप्रेजेंट फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो मतलब टॉल 3 हो गए एंड 1 इज ड्वार्फ, तो फिनोटिपिक रेशियो विल बी 3:1। लेकिन आप जीनोटाइप देखो, ये कैपिटल टी वाला सिर्फ 1 प्लांट है, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2 प्लांट्स हैं और स्मॉल टी वाले 1 प्लांट है। तो 1:2:1। तो व्हाट इज दिस, दिस इज जीनोटाइप रेशियो। We can revise through this, studying the cross, capital T, small t and capital T small t are genotypes, while the traits tall and dwarf are phenotypes। ये आपको समझा दिया मैंने। कैपिटल T टॉल के लिए है, स्मॉल t ड्वार्फ के लिए। अगर अभी बताया था, अगर सिर्फ एक कैपिटल T भी प्रेजेंट है तो फिनोटाइप टॉल ही होगा, और जब साथ में होंगे तो कैपिटल T विल डोमिनेट ओवर स्मॉल t, तो रेसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। कैपिटल T एंड स्मॉल t, ये कैपिटल T स्मॉल t इज होमोजाइगस कंडीशन, और ये क्या है, हेट्रोजाइगस कंडीशन। एक और चीज है आपके पुनेट स्क्वायर, बुक में भी देख सकते हो आप, पेज नंबर 72 एंड 73। द क्रॉस विच वी रिप्रेजेंटेड इन द प्रीवियस स्लाइड, उसको हम पुनेट स्क्वायर के तरीके से भी बना सकते हैं। वही चीज है, टॉल एंड ड्वार्फ गैमेट्स बने। अब यहाँ पे हमने ये दोनों गैमेट्स यहाँ रख दिए, मेल गैमेट्स यहाँ रख दिए, फीमेल गैमेट्स यहाँ रख दिए। अब इनको एक एक का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t एंड द सेम। तो क्या हुआ, ये फर्स्ट जनरेशन के ऑफस्प्रिंग मिल गए। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इसको कॉम्बिनेशन करके ये बना सकते हैं F2 जनरेशन। ओके, तो पुनेट स्क्वायर एक तरह का क्या है, कॉम्बिनेशन मेथड है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। पॉसिबल गैमेट्स आर रिटन ऑन 2 साइड्स, ये गैमेट्स लिखे हैं ऊपर और इधर साइड में, ये गैमेट्स हैं। और फिर इनका कॉम्बिनेशन मीन्स जब फर्टिलाइजेशन होता है तो गैमेट्स आर रिटन ऑन द साइड्स usually at top row and left column, and combinations are represented in the boxes.
With the help of Punnett square, genotypic ratio in F2 generation can be found. From the above given Punnett square, it is evident. तो हमको पता लग गया कि जीनोटिपिक रेशियो कैसी है, दिस 1:2:1. The ratio of 1:2:1 या दिस कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम बायनोमियल एक्सप्रेशन. तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी हम इसमें देख सकते हैं, क्योंकि आपको पता हो मेंडल क्या था, एक स्टैटिस्टिक्स को स्टडी करता था. वो स्टैटिस्टिक्स के पे बेस्ड उन्होंने ये सारा काम किया था. तो ही यूज्ड मैथ्स ऑल्सो, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑल्सो. तो ही यूज्ड बायनोमियल एक्सप्रेशन बाय ax प्लस by का होल स्क्वायर. तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, द गैमेट बेयरिंग जीन्स आर इन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ 1/2. हेंस द एक्सप्रेशन कैन बी एक्सपैंडेड एज, ये हमने a प्लस b को मान लीजिए ax प्लस by है ना. तो ये ax प्लस by इसका होल स्क्वायर हो गया. अब इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं इस तरह से, 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t इंटू 1/2 कैपिटल T प्लस 1/2 स्मॉल t. दोनों चीजें सेम वही आ गई, इक्वल टू 1/4 कैपिटल T प्लस 1/2 कैपिटल T प्लस 1/4 कैपिटल T. तो एक तरह से हमको 1:2:1 का रेशियो यहाँ पे इस एक्सप्रेशन की हेल्प से भी हम समझ सकते हैं. नाउ मेंडल ने जब ये सारा काम किया तो उन्होंने कुछ लॉज दिए थे, है ना. ही गेव सम लॉज विच आर नोन एज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस. तो 3 लॉज दिए हैं उन्होंने, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अभी मैंने आपको मेंडल का जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस बताया था तो उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस समझाया था, क्योंकि क्या था लॉ ऑफ डोमिनेंस कि F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस हो रहा है. लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऐसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम समझ सकते हैं. कैसे, गैमेट्स जब बनते हैं तो जो जीन्स के जो पेयर हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं. सपोज कैपिटल T और स्मॉल t जीनोटाइप था, तो कुछ गैमेट्स में कैपिटल T आ जाएगा, कुछ गैमेट्स में स्मॉल t आ जाएगा. दोनों साथ में नहीं जाते हैं. गैमेट्स आर हैप्लॉइड, तो ओनली वन एलील विल गो इन वन गैमेट. तो लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आर बेस्ड ऑन मोनोहाइब्रिड क्रॉस, while law of independent assortment is based on dihybrid cross. So I explained you law of dominance, just we'll read it. According to this law, characters are controlled by discrete units called factors, which occur in pairs with one member of the pair dominating over other in a dissimilar pair. तो एक जो है वो dominate करेगा दूसरे को. This is law of dominance. This law explains expression of only one of the parental character. जो ऑफस्प्रिंग है उसमें दोनों पेरेंट्स में से एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ, कब, F1 जनरेशन में. एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ कैरेक्टर्स इन F2 जनरेशन. नाउ यू कैन ओपन पेज नंबर 74 फॉर अंडरस्टैंडिंग अदर क्रॉस दैट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस. ये थोड़ा डिफरेंट है. मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपको समझ में आया होगा, अब उससे ही थोड़ा सा मिलता जुलता है, लेकिन देयर इज सम डिफरेंस, वो आप ध्यान रखना. तो क्रॉस बिटवीन F2 प्रोजेनी एंड इट्स होमोजाइगस पेरेंट्स, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट. तो F2 जो जनरेशन में जो हमें प्रोजेनी मिली उसको हम होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से, होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट मतलब जिसमें जैसे स्मॉल t उससे क्रॉस करवाएंगे. दिस क्रॉस डिटरमाइंस, क्यों आता है ये काम में, इस क्रॉस की क्या इंपॉर्टेंस है. दिस क्रॉस डिटरमाइंस वेदर द डोमिनेंट कैरेक्टर इज कमिंग फ्रॉम होमोजाइगस डोमिनेंट जीनोटाइप और हेट्रोजाइगस जीनोटाइप. टॉलनेस कमिंग फ्रॉम कैपिटल TT या स्मॉल TT. मान लो कोई प्लांट है वो प्योर टॉल है या हाइब्रिड टॉल है, ये पता लगाने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं. ठीक है, जीनोटाइप पता लगाने के लिए, जीनोटाइप ऑफ द हेट्रोजाइगस पेरेंट पता लगाने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं. और उसके लिए हम क्या करेंगे, इनमें से जो ये ऑफस्प्रिंग होगा F2 जनरेशन का, उसको होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से क्रॉस करवाएंगे. देखो क्रॉस बताते हैं आपको. When capital TT is crossed with small t, we obtain all TT individuals in the progeny, whereas when TT is crossed with small t, we obtain capital T, small t, that is tall and dwarf individuals in the progeny. Therefore, if tallness is coming from capital T, then we obtain all tall progenies in test cross. We obtain both tall and dwarf varieties in test cross if tallness is coming from capital T, small t. मैं आपको NCERT बुक में हमारी जो फिगर दिया हुआ है
5। उससे समझाती हूँ आपको, ठीक है। अब जैसे अभी तक हम टॉल ड्वार्फ की बात कर रहे थे, और भी हमने 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स देखे, उनमें से एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर था कलर ऑफ फ्लावर। तो हम बात कर रहे हैं टेस्ट क्रॉस की। होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट से हम क्रॉस करवाएंगे, लेकिन देखो 2 कलर हैं, वॉयलेट एंड वाइट, ठीक है। तो वॉयलेट एंड वाइट में से अब जैसे प्रोजेनी 2 तरह की हो सकती हैं, या तो कैपिटल W या फिर कैपिटल W स्मॉल w, पर अभी हमें पता नहीं है कि हमारे पास जो प्लांट है उसमें कौन से कैरेक्टर, मतलब उसके जीनोटाइप क्या है। तो हम दोनों प्लांट्स को किससे क्रॉस करवाएंगे? होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट से, जिसमें ये स्मॉल w है, ठीक है। तो ये देखो, इससे जो गैमेट्स बने ये स्मॉल w गैमेट्स, और इस ऑफस्प्रिंग से जो गैमेट्स बनेंगे एक कैपिटल W एक स्मॉल w। अब जो प्रोजेनीज मिली, कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो हमको 1 2 50% जो प्रोजेनी मिली वो वॉयलेट मिली है एंड 50% आर वाइट। ओके, यहाँ पे क्योंकि हमने जो ये कैसे लिया था, इसमें हेटेरोजाइगस कंडीशन है। तो जो अननोन फ्लावर जिसका हमें जीनोटाइप पता लगाना था वो क्या होगा? हेटेरोजाइगस। ये कैसे पता लगा? क्योंकि प्रोजेनी हमको 50% वायलेट मिली है और 50% वाइट मिली है। तो अगर हमें दोनों कैरेक्टर्स 50-50% मिलते हैं तो हम ये मान सकते हैं कि जो अननोन फ्लावर है जिसका जीनोटाइप पता लगाना था वो हेटेरोजाइगस था। अगर हमें प्रोजेनी मिलते हैं ऑल वॉयलेट देख रहे हैं आप यहाँ पे, क्योंकि सारे जो कॉम्बिनेशंस बने हैं वो सेम बने हैं, कैपिटल W स्मॉल w के कॉम्बिनेशंस बने हैं। यहाँ पे हमने जो पेरेंट ये लिया था, ये वॉयलेट लिया, प्योर वॉयलेट लिया, और यहाँ पे ये प्योर वाइट था। तो जो कॉम्बिनेशंस बने वो कैपिटल W स्मॉल w के बने, मीन्स ऑल फ्लावर्स आर वॉयलेट। तो अगर हमें सारे फ्लावर्स वॉयलेट मिले हैं, इसका मतलब है अननोन फ्लावर इज होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट मीन्स ये। Okay, so in this way we can find out the genotype of unknown plant. Now let us understand law of segregation. This law states that 2 alleles of a pair segregate or separate during gamete formation. तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखते हैं तो या कोई भी हम प्लांट को लेकर चलें, जब उनके गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स में गैमेट्स बनने के समय जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, या जीन के जो पेयर है, एलील्स जो प्रेजेंट है वो अलग अलग गैमेट्स में अलग अलग जाएंगे, साथ में नहीं जाएंगे। तो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन गैमेट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द 2 फैक्टर्स, या तो कैपिटल, अगर हाइट की बात करें आइदर टॉलनेस का कैरेक्टर कैपिटल T आएगा या फिर स्मॉल t आएगा। इन होमोजाइगस पेरेंट्स, अगर पेरेंट होमोजाइगस है तो दोनों स्मॉल आएंगे, तो ऑल गैमेट्स प्रोड्यूस्ड आर ऑफ सिमिलर काइंड। वाइल इन हेटेरोजाइगस पेरेंट्स 2 तरह के एलिल्स हो जाएंगे और वो इक्वल प्रोपोर्शन में होंगे। नाउ अनदर फिनोमेना इज देयर, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ लिया, टेस्ट क्रॉस पढ़ लिया, अब ये थोड़ी अलग चीज है, और अलग चीज है इनकम्प्लीट डोमिनेंस। डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस में हम क्या देख रहे थे कि ओनली द डोमिनेंट कैरेक्टर इज एक्सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन। अब यहाँ ध्यान से सुनना कि यहाँ पे क्या फर्क आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब पूरी तरह से डोमिनेंट नहीं हो पाया। F1 जनरेशन हैज अ फिनोटाइप दैट डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द 2 पेरेंट्स। सपोज टॉल और ड्वार्फ की ही बात करें अगर, तो जो हमें इस क्रॉस में जो F1 जनरेशन में हमें जो प्लांट मिलेंगे वो ना तो टॉल होगा ना ड्वार्फ होगा, बट इज अ मिक्सचर ऑफ द 2, मीन्स मीडियम हाइट प्लांट। एग्जाम्पल, अब फ्लावर कलर की बात करते हैं, आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है डॉग फ्लावर या स्नैपड्रैगन का, एंटीरिनियम। फ्लावर कलर इन डॉग फ्लावर वेयर रेड फ्लावर्स हैं, वाइट फ्लावर्स है और पिंक फ्लावर्स है। तो कैपिटल RR रिप्रेजेंट रेड फ्लावर्स, स्मॉल RR रिप्रेजेंट वाइट फ्लावर्स, जबकि कैपिटल R स्मॉल r रिप्रेजेंट पिंक फ्लावर्स। अगर अभी ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता तो क्या होता, ये वाला भी किसको रिप्रेजेंट करता, रेड फ्लावर को ही। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मीन्स दोनों कैरेक्टर कंप्लीटली, कोई सा भी कैरेक्टर कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं हो पाया, तो एक इंटरमीडिएट कलर बन गया जिसको पिंक कलर का हमने।
विद द हेल्प ऑफ दिस क्रॉस हम समझ सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया है फिगर 5.6. Here genotype ratio remains as in Mendelian cross, but phenotype ratio changes since complete dominance is not shown by capital R, hence incomplete dominance. अब क्रॉस से समझो, ये पेरेंट्स हैं, प्योर रेड प्योर वाइट, इनको क्रॉस करवाया, गैमेट्स बने, एक जैसे गैमेट्स बनेंगे सारे आर आर कैपिटल आर, यहाँ सारे गैमेट्स बनेंगे स्मॉल आर. नाउ FN जनरेशन में जो हमें मिला, अब यहाँ पे ये बात ध्यान देने की है, अगर ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस हो रहा था, जब तो ये रेड ही बनता, लेकिन इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको याद रखना है कि FN जनरेशन में जो हमें ऑफस्प्रिंग मिले वो कैसे मिले, पिंक, और जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर. अब इसी तरह के सारे प्लांट्स, इसी तरह के दो प्लांट्स लेके इनको जब क्रॉस करवाएंगे तो नाउ द गैमेट्स विच वी विल गेट, गैमेट्स कौन कौन से मिलेंगे, कैपिटल आर और स्मॉल आर. तो हम मेल के भी ये दो गैमेट्स ले लेते हैं और ये फीमेल के गैमेट्स ले लेते हैं. अब इनको हम अगर कंबाइन करवाते हैं तो हमें देखो एक मिला रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर मिलके बनेगा पिंक, अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर मिलकर पिंक, स्मॉल आर मिलके वाइट. तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि फर्स्ट जनरेशन में डोमिनेंस नहीं हो पाया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो पाया, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट कैरेक्टर एक्सप्रेस हुआ है. नाउ मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो अलग अलग थे. फिनोटिपिक रेशो था 3:1, जीनोटिपिक रेशो था 1:2:1. अब इसमें क्या डिफरेंस है, देखो फिनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 है, जीनोटिपिक रेशो भी 1:2:1 है, क्योंकि हमें फिनोटाइप में भी 3 वेराइटीज मिली और जीनोटाइप में भी 3 वेराइटीज मिल रही है, रेड पिंक एंड वाइट, और कैपिटल आर आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर. तो इट शुड बी क्लियर कि डिफरेंस याद रखना, इसमें फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 ही है, दोनों सेम है, फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो आर सेम. ये हम पढ़ ही चुके हैं. व्हाट इज डोमिनेंस? A diploid organism produces 2 copies of a gene which need not to be identical and may have minor alterations. तो जो डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स होता है उसमें जीन की 2 कॉपीज होती हैं, जो मैंने बताया था, एलिल्स कहते हैं जिनको. सपोज अ नॉर्मल जीन produces a product P, then the altered version of it must produce a non-functional product P dash or no product at all. जैसे हम मान लो कैपिटल टी और स्मॉल टी की ही बात करें तो कैपिटल टी ने तो अच्छी हाइट को रिप्रेजेंट कर दिया, लेकिन स्मॉल टी ने हाइट को बहुत कम कर दिया, क्योंकि वो कम उसमें हार्मोन सिक्रीट हुए, वो या फिर कह सकते हैं वो नॉन फंक्शनल था. तो इस तरह से ये डोमिनेंस वर्क करता है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड कोडोमिनेंस. अब हम और एक चीज समझने जा रहे हैं, कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस मतलब साथ में ही दो चीजें अगर डोमिनेंट हो जाएं, दोनों बराबरी से अगर एक्सप्रेस हो जाएं, 2 कैरेक्टर या 2 से ज़्यादा कैरेक्टर एक साथ एक जैसे एक्सप्रेस हो जाएं, तो उसको हम कहते हैं कोडोमिनेंस. इन कोडोमिनेंस F1 प्रोजेनी रिजेंबल्स बोथ द पेरेंट्स. मतलब पेरेंट्स के दोनों पेरेंट्स के कैरेक्टर्स अगर ऑफस्प्रिंग में दिखें, कैसे? इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आपको बिल्कुल ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो. ABO ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन बींग्स. तो इसकी मदद से हम इसको समझेंगे. ABO ब्लड ग्रुप, वी नो दैट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स प्रेजेंट है, लेकिन हम क्योंकि ABO इसके कॉम्बिनेशन से सब बनेंगे इसलिए ये नाम दिए रखा. नाउ ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय जीन I. जैसे हम हाइट के लिए T लेके चलते हैं तो ब्लड ग्रुप के लिए हम I, कैपिटल I लेके चलेंगे, इससे कंट्रोल, ये जीन कंट्रोल होगा. जीन I हैज 3 एलील्स. जैसे हाइट में 2 एलील्स से कैपिटल T स्मॉल t, ब्लड ग्रुप में 3 एलील्स होंगे. क्या क्या हो सकते हैं? हम A ब्लड ग्रुप वाले को अगर रिप्रेजेंट करना हो तो I A से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, B वाले को I पे B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और O ब्लड ग्रुप के लिए हम स्मॉल I यूज करते हैं क्योंकि वो रेसेसिव होगा. A person possesses any 2 of the 3 alleles. किसी भी पर्सन में तीनों एलिल्स नहीं होंगे, लेकिन इनमें से कोई से 2 होंगे. ठीक है. IA एंड IB डोमिनेट ओवर स्मॉल I. अब ये दोनों तो डोमिनेंट रहेंगे अगर जब भी प्रेजेंट होंगे, और I इज रेसेसिव. बट विद ईच अदर IA एंड IB आर को डोमिनेंट. देखो अगर IA के साथ स्मॉल I का कॉम्बिनेशन होगा तो ये डोमिनेंट है,
और ये रेसेसिव है, इसके साथ इसका होगा तो ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है। लेकिन जब ये दोनों साथ में प्रेजेंट होंगे IA एंड IB तो ये दोनों डोमिनेंट होंगे, इसीलिए इसको कहते हैं कोडोमिनेंस। IA एंड IB contain A and B types of sugar while I small I does not contain any sugar, तो ये recessive है। The altered version of the gene must not perform the functions that a normal gene performs, मतलब जो recessive वाला है वो function perform नहीं कर पाएगा। It must affect the phenotype. The original gene is said to be dominant while the modified gene is recessive. अब इस चार्ट से हम समझते हैं एलील फ्रॉम पेरेंट ए। सपोज एक पेरेंट से हमें ये एलील्स मिल रहे हैं, दूसरे पेरेंट से ये एलील मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जो ऑफस्प्रिंग होगा उसमें जो एलील्स आते हैं वो एक फादर का आता है, एक मदर का आता है। तो इससे क्या ब्लड ग्रुप बनेगा हम ये समझ लेते हैं। सपोज पेरेंट फर्स्ट के पास है एलील IA, पेरेंट बी के पास भी IA है, तो कॉम्बिनेशन IA बनेगा। अब दोनों AA ही हैं तो ब्लड ग्रुप होगा A। सपोज फादर का IA है, मदर का IB है, तो ऑफस्प्रिंग में IA IB। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि दोनों आ गए, दोनों कैरेक्टर, दोनों एलील्स आ गए, मीन्स कोडोमिनेंस। क्या कहेंगे हम इसको? कोडोमिनेंस। तो ब्लड ग्रुप होगा हमारा AB। नाउ इफ फादर हैज IA बट मदर हैज स्मॉल I, ये एलील आया स्मॉल I, तो इनका कॉम्बिनेशन बनेगा IA स्मॉल I। नाउ I इज रेसेसिव, सो ब्लड ग्रुप हो जाएगा आपका A। IB IA तो अगेन सेम, दोनों को डोमिनेंट होंगे, IB तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा B। IB और स्मॉल I तो अगेन दिस इज रेसेसिव, तो हमें ब्लड ग्रुप मिलेगा B। अब ये केस है स्मॉल I, जब दोनों रेसेसिव पेरेंट मिल जाएंगे, मतलब पेरेंट फादर का भी में भी स्मॉल I होगा और मदर में भी स्मॉल I मिलेगा, तो ये मिलकर O ब्लड ग्रुप आएगा। ओके, तो देखो मल्टीपल एलिलिज्म भी शो कर रहा है। दिस इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म। प्लीज रेफर टू पेज नंबर 78। मल्टीपल एलिल्स क्या होता है? ये व्हेन मोर देन 2 एलिल्स कंट्रोल अ कैरेक्टर, जैसे ये IA IB दोनों एक ही कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसको? ब्लड ग्रुप को, तब इसको कहते हैं मल्टीपल एलिल्स। एज इन ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, मल्टीपल एलिल्स आर यूज्ड इन पॉपुलेशन स्टडीज। तो ये अभी तक हमने देखा इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन भी देखा, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, ठीक है। अब एक और टॉपिक है हमारा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स, जो कि डायहाइब्रिड क्रॉस जिसको हम कहते हैं। मतलब हम अब 2 कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करेंगे और लॉ, इसी से लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी पढ़ेंगे। तो इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स टुगेदर, जैसे हमने जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े उनमें से हम 2 कैरेक्टर्स को एक साथ लेके चलेंगे। इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन्स in dihybrid cross we consider 2 characters, suppose for example seed color and seed shape। तो येलो कलर एंड राउंड शेप, ठीक है, सीड कलर हो गया येलो और शेप हो गई राउंड, और दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गया उसका, मतलब ये डोमिनेंट है ओवर ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप। तो येलो कलर ग्रीन कलर, जिसमें से येलो डोमिनेंट ग्रीन रेसेसिव, राउंड शेप और रिंकल्ड शेप में से राउंड डोमिनेंट है और रिंकल्ड रेसेसिव है। तो इनका हम क्रॉस बनाते हैं, है ना, आपकी बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 78 एंड 79 पे। तो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पेरेंट्स लिए हमने, राउंड येलो लिए। अब हमने बताया राउंड भी डोमिनेंट है, येलो भी डोमिनेंट है, तो कैपिटल RR राउंड के लिए, कैपिटल YY येलो के लिए, एंड स्मॉल RR रिंकल्ड, स्मॉल YY विल रिप्रेजेंट ग्रीन कलर। अब इनके गैमेट्स बनेंगे। अब यहाँ पे 2 तरह के हैं तो 2 तरह के गैमेट्स बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल R, एक बनेगा स्मॉल y, मतलब इस तरह के ही सारे गैमेट्स बनेंगे। ऐसे ही इनमें भी इसी तरह के गैमेट्स बनेंगे विच विल कंटेन स्मॉल r एंड स्मॉल y। नाउ इन F1 जनरेशन इनका कॉम्बिनेशन हम देखें तो हमें राउंड येलो ही मिल रहा है, लेकिन कैसा है ये? हाइब्रिड राउंड येलो है, इट इज़ नॉट प्योर राउंड येलो। कैपिटल R और स्मॉल r है साथ में, तो कैपिटल R का ही डोमिनेंस होगा तो राउंड दिखेगा, और स्मॉल कैपिटल Y एंड स्मॉल y है तो येलो दिखेगा। अब इसके भी गैमेट्स बनाएं तो इसके कॉम्बिनेशंस अगर हम बनाते हैं, इनके सबके कॉम्बिनेशंस बनाएं तो हमें 4 टाइप्स ऑफ गैमेट्स मिलेंगे। जैसे ये कैपिटल R और कैपिटल Y का कॉम्बिनेशन बना तो ये बनेगा स्मॉल r कैपिटल Y से, ये कैपिटल R स्मॉल y एंड स्मॉल r स्मॉल y।
ठीक है, ये तो आ गए आपके मेल गैमेट्स और इधर रख लेते हैं सेम टाइप ऑफ गैमेट्स हम यहाँ पे भी रख लेंगे जो कि फीमेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करेगा। अब इनके कॉम्बिनेशन बनाएंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करना दोबारा से। इन दोनों का कॉम्बिनेशन देखें तो कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड येलो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई अगेन राउंड येलो, यहाँ पे भी राउंड येलो, अगेन हेयर राउंड येलो। अब आप जीनोटाइप पे भी ध्यान दो और फिनोटाइप पे भी ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पे आपके एक कैपिटल आर है एक स्मॉल आर है तो राउंड ही आएगा, दोनों कैपिटल वाई हैं तो येलो ही आएगा। अब यहाँ देखो डिफरेंस आया है कि स्मॉल आर और स्मॉल आर, तो स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंकल्ड को, तो ये रिंकल्ड सीड मिलेगा और कैपिटल वाई अगेन येलो। तो इस तरह से आप सारे कॉम्बिनेशंस बना के देखोगे तो आप ये यू विल ऑब्टेन 9 प्लांट्स विच आर राउंड येलो, 3 प्लांट्स विच आर रिंकल्ड येलो एंड 3 प्लांट्स अगेन जो राउंड ग्रीन है एंड ओनली 1 प्लांट विच इज रिंकल्ड ग्रीन। अब आप इसमें ये देखो कि जो डिफरेंट हमने जो फिनोटाइप मिला वो इस कॉम्बिनेशन में मिला, तो ये डायहाइब्रिड क्रॉस है जिसका रेशो क्या मिला हमें 9:3:3:1। अब इसी की हेल्प से हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए हमारे जो पेरेंटल जो जीनोटाइप था वो कैसा था, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब यहाँ देखो जितने भी ऑफस्प्रिंग्स मिले हैं सिर्फ ऐसे ही नहीं मिले, इसी कॉम्बिनेशन के नहीं मिले हैं, इस मतलब ये और ये, इसके अलावा भी और कॉम्बिनेशन मिले हैं। अब वो क्या है वो आप जीनोटाइप देखोगे जब समझ में आएगा। जैसे ये सब राउंड येलो हैं लेकिन इनके जीनोटाइप अलग है, ठीक है। जैसे इसका जीनोटाइप अलग है, ये हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है, ये भी हाइब्रिड है। प्योर राउंड येलो कितने मिले, 1 है ना। तो आप इस तरह से एक एक का जीनोटाइप निकालकर एक एक का जीनोटाइप देखो, एक पर्टिकुलर जीनोटाइप के कितने ऑफस्प्रिंग है। फिनोटाइप तो हमें दिख रहा है 9:3:3:1, लेकिन आपको इसका जीनोटाइपिक रेशियो निकालना है, ठीक है। आई एम गिविंग यू दिस क्वेश्चन फॉर योरसेल्फ कि फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ दिस क्रॉस एंड आई विल डिस्कस इट विद इट एंड आई विल गिव यू आंसर ऑल्सो इन आवर डाउट सेशन, ठीक है। तो आप इसका जीनोटाइप रेशियो भी निकाल के रखना जो हम उस वक्त डिस्कस करेंगे। So with the help of this law of with the help of this dihybrid cross हम law of independent assortment भी समझ सकते हैं। तो law of independent assortment ये कहता है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन के अलावा भी हमें कुछ न्यू कॉम्बिनेशन मिले, जैसे कि यहाँ था राउंड येलो रिंकल्ड ग्रीन, पर हमें रिंकल्ड येलो भी मिला और रिंकल्ड ग्रीन भी मिला, राउंड ग्रीन भी मिला, है ना। तो ये कुछ न्यू कॉम्बिनेशंस भी मिले जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंटली ये और नए कॉम्बिनेशंस इन्होंने बनाए हैं। दिस इज द रेशियो 9:3:3:1। Law of independent assortment. When 2 pairs of traits are combined in a hybrid, 1 pair of characters segregates independent of the other pair of character. जो कैरेक्टर हमने पेरेंट्स में देखे उनसे हटके अलग कैरेक्टर्स भी मिले हैं हमको। In a dihybrid cross between 2 plants having round yellow and wrinkled green seeds, 4 types of gametes बने थे, 4 type of gametes are produced. Each of these segregate. अब ये भी सब अलग अलग हो जाएंगे और नए combinations बनाएंगे, ये भी अलग, सब अलग हो जाएंगे आपस में, and independent of each other, each having a frequency of 25% of the total gametes produced. So this was law of independent assortment. Students, I hope you understood all the topics. Now this was all, these were the few topics of this chapter. Actually this is very long chapter, so I suggest you revise it again through this my video, and if any doubts are there we will discuss in doubt session. So children, thank you, take care, goodbye.